नमस्ते मनोज जी। वेलकम Namaskar, बैक। Pankaj ji, and namaste to everybody. I hope all of you are doing well. I hear that in India the situation is not that great हाँ, with regards to the COVID pandemic. So या please do take या care and please do get vaccinated. It is very important यस। because I hear many people say that they don't want to get vaccinated. I mean, reasons best known to them and perfectly okay with that. But the problem is you are endangering people who have even got vaccinated. So that या is something that you need to think of and make sure that you get vaccinated and यस। tell everybody to get vaccinated so that we can get rid of this pandemic as quickly as possible. So yeah. Um, okay, so the rag for today. Now I must tell this to you that today, before starting this recording, I posed this question to Pankaj ji. I asked him to identify the rag. I did not tell him the rag in advance, and I just sang a couple of notes of the rag, and then, well, he was absolutely on the money, and he identified the rag so perfectly, and that was so amazing. And it turns out that there are so many songs actually in this rag, है यस ना पंकज जी? So यस यस, लॉट्स हाँ, लॉट्स लॉट्स। and the rag that we are talking about is an early night melody, and that is Rag Kedar. केदार। Yes, Kedar, Rag Kedar. यस यस यस। Yes. So पता नहीं, फॉर सम रीजन आई फील करुण करुण रस ज्यादा है इसमें, केदार में करुण एकदम। रस नहीं, करुणा अभी दया, आप अभी ऐसा आप मुझे जब गाने लगता है थोड़ा। सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रोमांस भी कूट अच्छा। कूट के भरा हुआ है. भक्ति रस तो है ही. ओके। यस. हाँ, भक्ति भक्ति, हाँ भक्ति करुणा, हाँ, हाँ वही भक्ति है। रस तो है ही, मगर रोमांस भी उतना ही भरा हुआ है. अच्छा ठीक है। और जी। और इस और ये ऐसा राग है कि वी कॉल दिस अ वक्र राग. So the ओह। meaning of the word vakra, probably we have talked about it before. Vakra meaning a rag that doesn't go straight up and straight down हाँ like sare gama padhani हाँ sa sani da pa magare sa, but it हाँ goes हाँ। up and down. Hmm. तो हम्म। इसको वक्र जाति बोलते हैं. And राग केदार belongs to Kalyan Thaat, and uh, the fourth note ma is the central note of the rag, वादी स्वर जिसको कहते हैं. And both variations of ma, meaning Shuddha and Tivra, are used in this rag. हम्म। Uh, and Ni, meaning the seventh note, it is predominantly Shuddha Ni, but as a beauty spot, we call it the beauty spot of the rag. हम्म। A little bit of Komal Ni also is used, which we will हम्म। see when we talk about the rag uh, and when we sing the swars of the rag. So that's Rag Kedar for you. And let's just check the Aroha and Avroha of Rag Kedar. And as I said, you will notice that it is like an up and down rag, not straight up and straight down. हम्म। So it goes sa re sa ma ga pa ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma pa dha pa ma वेरी गुड। re sa. यस। So this is the nature of Rag Kedar. So as you can see, sa re sa ma ga pa. This is like the main feature of the rag. तो जैसे राइट। म्यूजिक के एग्जाम में जब पूछते हैं कि भाई केदार राग कम से कम सुरों में सुनाइए, तो हम्म। दिस इज व्हाट यू विल सिंग. सा रे सा म ग प, ये उसकी एकदम सिग्नेचर फ्रेज है. हम्म। और फिर म प ध प वाह। म, ये जो है फ्रेज, यस।
Absolutely, एकदम तुरंत पता लग जाता है. एकदम हाँ. Yes, yes. And I'm pretty sure as I'm singing these notes, some of you also must have guessed a couple of songs which are so popular. Hmm. And I was talking about the beauty spot, meaning the usage of Komalni. Now that normally is used while coming down in a way that sa ni dha pa ma pa dha ni dha pa. तो ये जो फ्रेज है ma pa dha ni, तो ये जो नी, that's the Komalni. अच्छा, हाँ. So ma pa dha ni dha pa. And the best part is, in songs based on Rag Kedar, even in those, Komalni is used exactly in this fashion. यानी कि उसकी सरगम अगर आप निकालेंगे उन गानों की, तो you'll be amazed that the sargam also is exactly like this. So which means the usage of Komalni has to be strictly done this way when you're singing Kedar. तो कोमलनी का इतना ही रोल है, मगर वो एक्चुअली इतना प्रोमिनेंट है कि जैसे कोई हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कोई कोई जो होते हैं वो सब्जी में ऐसा कुछ मसाला डाल देते हैं कि उसकी जो टेस्ट है वो ऐसी ज़बरदस्त हो जाती है. तो बाकी लोग भी वही सब्जी बनाते हैं, मगर उस सब्जी में उस एक्स्ट्रा एक हल्का सा कोई तो एक मसाला, और वो कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग बताते नहीं है कि भाई कौन सा मसाला है. तो वो ऐसे ही अपने इसके हिसाब से डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई हमको पता नहीं, हमने ऐसे ही डाल दिया, बट उसी में वो जादू आ जाता है. तो ये कोमलनी का वैसा ही है. तो राग चल रहा है और अचानक से वो कोमलनी आ जाता है और फिर जैसे क्या बात है ऐसे. तो ये इसकी खासियत है. तो अभी इसमें हम जो बंदिश करेंगे क्लासिकल की, एक ताल पर आधारित है, 12 बीट्स साइकिल, और इसमें होली का वर्णन है. अभी अभी होली भी ख़त्म हुई, तो जैसे कृष्ण और गोपियाँ होली खेल रहे हैं और कैसे कृष्ण की लीला रहती है वहाँ पर, उसका वर्णन है इसमें. तो ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, घेरत बीच कुंवर लाल, डारत अखियन गुलाल. तो ये इस बंदिश के शब्द composition? I have to ask you now. No. No. लगता है अभी तो मैं फंस गया है. No, we have to know. We have to give the credit where it is due. It is, yes. नहीं, ये मैंने अपने टीचर से सीखा. Okay. तो so this is how it goes. Okay. ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, घेरत बीच
अखियन गुलाल डारत, अखियन गुलाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर। गावत कोई धरे ताल, गावत कोई धरे ताल, अबीर गुलाल फेंकत थाल, अबीर गुलाल फेंकत थाल, हंस हंस सब खेलत भाग, हंस हंस सब खेलत भाग, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर। ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी। सारे साम मग प प म प ध ध प मग प प म प ध ध नि सा रे सा द प म प सा ध प म प ध ध प ध म रे सा, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी। म रे सा नि सा, ऐसी चतुर, म प ध प प प म रे सा, म ग प म प ध नि ध प म प ध प म रे सा नि सा, ऐसी चतुर। म प ध नि सा सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प सा नि ध प म प ध ध प ध म प म प म प ध प म रे सा सा सा, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, आ चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, घेरत बिच कुंवर लाल डारत, अखियन गुलाल, ऐसी चतुर। गावत कोई धरे ताल, गावत कोई धरे ताल, गावत कोई धरे ताल, गावत कोई धरे ताल, गावत सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ध नि ध प म प प म प ध नि सा, गावत कोई धरे ताल, सम रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे प रे सा नि ध प म प सा नि ध प म प ध प ध म प ध प म रे सा म प ध नि सा म प ध नि सा म प ध नि सा, गावत कोई धरे ताल, गावत आ गावत
गावत कोई धरे ताल, अबीर गुलाल फेंकत थाल, हंस हंस सब खेलत फाग, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल, ऐसी चतुर, ऐसी चतुर, ऐसी चतुर रंगीली ग्वाल। वाओ, ग्रेट ग्रेट। बढ़िया, तो शानदार। ये जी। राग केदार का हमने क्लासिकल जो फॉर्म है वो देखा। तो इसमें जैसे अभी आपने देखा कि आई मीन इनिशियली वी थॉट दैट इट वाज मोर ऑफ भक्ति रस और मोर inclined towards devotional aspect, but there is so much of shringar also in it, as we'll be touching upon those moods through the songs that we'll be talking about. But let's first start with the popular ones, right? So let's do this. Sa sa ma ga pa 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 dha pa ma pa dha, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति दे, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे। अब देखिए ये जो मैंने कहा था जो ब्यूटी स्पॉट है कोमलनी, प प प प धनी धा प, तो इसी तरह से आ गया ये इस गाने में भी। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे दो, तो ये। And what about this one? प प प सा 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 रे सा, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। This song also featured in the Hollywood movie Slumdog Millionaire for a second. बिल्कुल बिल्कुल। Very interesting. बिल्कुल। तो ये दो भक्ति गीत, इनफैक्ट एक और मराठी में ऐसा एक भक्ति गीत है कि जो एक प्रेयर सॉन्ग के तौर पे यूज किया गया था। मूवी का नाम है सुशीला, और वो गाना बहुत ही फेमस है मराठी फिल्म सर्कल में, और मराठी म्यूजिक जो जानते हैं सुनते हैं उनमें। और वो गाना है नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यं शिवं सुंदरा, सत्यं शिवं सुंदरा, सत्यं शिवं सुंदरा, सत्यं शिवं
सुंदरा। तो ये भी उस मूवी में स्कूल के प्रेयर के तौर पे इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो बच्चे गाते हैं इसमें, परफेक्ट। तो ये बहुत ही फेमस। अच्छा, अच्छा प्रेयर का भाव बहुत लगता है केदार में, ऐसे हाँ, विनती मगर हो रही है, प्रेयर हो रही है, अच्छा प्रार्थना हो रही तो अभी फिर उस अच्छा। भाव को जरा बदल देते हैं। एंड हाउ अबाउट दिस, सा सा म म म म ग ग प प म प प ध ध रे सा ध नि ध प प प ध म ग प म। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। देखिए टोटली डिफरेंट, यस, बदल गया, मूड बदल गया। ओपिनियन, हाँ जी। जी। तो अभी जी। इसी तरह से एक तलत साहब का गाना बहुत ही पॉपुलर, खास करके जो पुराने गाने सुनते हैं और खास करके जो तलत साहब को सुनते हैं, 1952 की मूवी जो है आशियाना, तो उसमें सा म ग प प प म प म प ध प म ग, मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की पीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। पहली बार सुना मैंने गाना, वाह। अच्छा हाँ, तो ये तलत साहब का आशियाना मूवी का गाना है, और खास उनकी स्टाइल में जिस तरह से वो गाते हैं। अच्छा, and how about this very popular song from the movie Mughal Azam? Of course. सामा मामा, तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि टिपिकल केदार की जो फ्रेज है सामा ग प, ये फ्रेज इन सभी गानों को डिफाइन करती है। देखिए सभी गानों में ये फ्रेज आपको दिखेगी जी। ऐ मेरे मुश्किल खुशा, फरियाद है, फरियाद है। प्रेयर आ गई, प्रेयर के भाग आपके होते हुए, देखिए कोमल नहीं आ गया, धनी ध प, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सकीना, बेकस पे करम कीजिए। जी बढ़िया, शानदार जी। प्रार्थना, फरियाद, विनती, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, अभी ये गाना मैंने आज ही सुना था। कौन सा? फ्रॉम द मूवी सावन को आने दो, sung by यशुदास जी. So it goes something like this. Sa ma 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 ga pa pa,
बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे, ऐसा बदन के कृष्ण का मंदिर दिखाई दे, बोले तो बांसुरी कहीं बजती सुनाई दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम देखिए, फ्रेज, क्लियर फ्रेज है एकदम। जी 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 बिल्कुल। तो पहली बार सुनी ये भी आज। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं जब देख रहा था गाने केदार के, तो ये आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस वन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। जी। तो आप थोड़ा तड़क भड़क वाला द बर्निंग ट्रेन का वो कव्वाली इसी पे है? हाँ, थोड़ा पल जगा दो दीजिए सबको। पल का ये बात साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल वाह। के याराने हैं। अभी इसी स्टाइल में एक गुजराती गाना है, ओह ओके। वो इतना जबरदस्त है, वो इस गाने से काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया कि पल दो पल को इस गाने से लिया गया है, मगर खैर वो तो शायद बात ठीक नहीं होगी, बट क्योंकि ये सारे एक ही राग पर जब बेस्ड होते हैं तो ऐसे लगता है कि एक जैसे हैं। सभी केदार से लिए। हाँ, कहूँ छू जवानी ने, तो इसका मूड ऐसा है कि एक बूढ़े हैं और वो कह रहे हैं, मतलब वो जवानी को बोल रहे हैं कि भाई तू फिर से मेरे पास मत आ, क्योंकि अभी मुझे बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगर तू आए तो फिर से वो सारे भाव मेरे मन में जागृत हों। अरे बाप। तो कहूँ छू जवानी ने पाछी वળી जा, के घड़पण नु घर मारू, घड़पण यानी कि बुढ़ापा, के घड़पण नु घर मारू આવી ગયું છે, મનને ન ગમતું, મનને ન ગમતું, મનને ન ગમતું, ઘડપણ નું ડાપણ, પણ તન તારું સગપણ ભૂલાવી રહ્યું છે, કહું છું જવાની ને। ये कहाँ से निकाला आपने ढूंढ के? हाँ, तो ये रफी साहब का गाया हुआ है, और ये तो गुजराती में तो एकदम हिट। अरे मेरे ख्याल से अविनाश व्यास जी की गीत रचना और संगीत भी उन्हीं का है। अच्छा। तो अविनाश व्यास जी वो तो मतलब गुजराती के लेजेंड, यानी कि कोई भी आप गुजराती गाना उठाएं, अच्छा, लगभग 50% गाने उनके हैं एक्चुअली। अच्छा। हाँ, मैंने सिर्फ आशित देसाई का ही नाम सुना। हाँ, आशित भाई तो बहुत जबरदस्त हैं। हाँ, हालांकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो गुजराती फिल्मों में कम रहा है, गुजराती सुगम संगीत में ज्यादा उनका रहा है, यानी कि नॉन फिल्मी गानों में ज्यादा रहा है उनका कंट्रीब्यूशन। बट अविनाश व्यास, अगर आप सारे पुराने फिल्मों के गाने अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको गीतकार संगीतकार अविनाश व्यास, वो दोनों। और बाप। हाँ बिल्कुल एकदम। तो ये उन्हीं का गाना था। तो देखिए इस तरह के कितने सारे गाने निकल के आ गए राग केदार में, और अलग अलग मूड्स के गाने हमने देखे। और yeah, so it was nice presenting this rag, and like I said, the homework continues. In fact, I should tell the viewers that there have been people who send their homework to me offline, in the sense that they message me on WhatsApp ki is this, जैसे अभी पिछली कड़ी में जो हमने शिवरंजनी के बारे में बात की थी, तो उसमें 2-3 लोगों ने मुझे बाद में गाने भेजे कि भाई मराठी में 1-2 काफी पॉपुलर गाने हैं इस राग पर आधारित, तो वो उन्होंने मुझे भेजे। तो इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। अभी मैंने देखा मेहंदी हसन की गजल भी है क्या केदार में? नहीं, वो उन्होंने लिखी तो है बट वो केदार में नहीं है एक्चुअली,
भूली अच्छा, बिसरी चंद ओके, उम्मीदें। हाँ, ओके, या नहीं बट वो ओके, केदार नहीं है। ओके, ठीक। या और ये घर फिल्म का गाना आपकी आंखों में कुछ महके नहीं वो भी गुलजार, केदार नहीं है एक्चुअली। तो नहीं है, ओके। नहीं या ओके, 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 तो ओके, ओके, ठीक है जी। बट कम करो, इंटरनेट पे गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत नहीं वो फैलती तो है, नहीं वो तो यार वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कई है। बार या इंटरनेट में। राइट, या जी, मजा तो है, हाँ। so then the homework continues for listeners. Please do send me your comments. Of course, it will be great if you can post it over here so that people will also come to know. But it's totally your choice, though. I can always share your songs if you send it to me. But stay safe, please. And like I said at the beginning, please get vaccinated, all of you. And keep music as your partner in these tough times. And happy because- Gudi Padwa. Oh yes, of I guess. course. Yeah. How can we forget Because- that? It's a new year, Yes. April 13th. So Yes. very, very, very happy New And Year Baisakhi. to all of you. Yeah, and Baisakhi, And Punjab. may this year bring lots and lots of joy and togetherness for all of us. And may music continue to be our partner in this journey and help us face these difficult times. Right? So, Pankaj ji, to you and to all the listeners, namaskar and a very happy new year, and see you all in our next episode. Thank you and happy listening.